Hello, dear children. Welcome to Piker Defense Academy, the best online defense academy. So today we are going to start the topic of force. In this topic, we are going to discuss about the introduction for the force, inertia of the body, and Newton's laws of motion, momentum, relationship between force and momentum, acceleration and mass of an object, and some numericals related to it. This is very important physical quantity which we are using in our daily life. Like, what is force? If I say force is a push or pull, simply push or pull. Taking out the book from the bag, keeping the book back in the bag, that is all about push and pull. So that is force. So how we measure force? We know that unit of force, the SI unit, that is a system of international unit. The SI unit is Newton, and it is denoted by N, right? Then force, unit of force, effects of force. In effects of force, that what a force can do. Force can change direction. Like we are playing cricket, तो cricket में जब हम shot मारते हैं, right? So we can change the direction. It can also change state of motion. Can change state of motion and can stop a moving object. Right? Can change the shape also. So these are general effects of force. Right? So force is a push or pull. SI unit is Newton. We always measure it in Newton. These are the effects of force which you can keep in your mind. Right. Now you might have heard this name, that is mass. Mass and weight are completely different things. So mass is actually, this is a quantity of matter. Quantity of matter contained in a body. Contained in a body. Like whenever something exists, that means it will have some mass. Weight may be zero हो सकता है, लेकिन mass can never be zero. And SI unit is kilogram. Right? Why I'm telling you about mass? Because we are going to discuss a new physical quantity that we called inertia. Inertia क्या होता है कि actually if a box is there, two boxes are there, right? This is box B1, this is box B2. ये जो box है, इस box की capacity है 20 kilogram, right? But this box is empty, and this box is filled with sand, right? Now, if I kick on this box, or I just give a push on that box, it will move. Whereas if I will push on that box, it will not move. Right? Why? Because it has more mass. तो more mass होने की वजह से इसके पास ऐसी क्या चीज आती है? But it has, due to which it's not able to move. That is inertia. So inertia is what? It is the inability of a body to change its state of motion.
it may be at rest. Now in this case the box was in at rest. Simply एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो अगर साइकिल को रोकना इजी है, ट्रक को रोकना थोड़ा डिफिकल्ट है. वाई? क्योंकि ट्रक के पास मास ज्यादा है, तो उसमें मोशन आ गया, इसमें रेस्ट आ गया. उसी तरीके से हैवी चीज की जो है डायरेक्शन चेंज करनी डिफिकल्ट रहती है, राइट. तो उस वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि इनर्शिया की जो है 3 टाइप्स है. कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, one is inertia of motion, one is inertia of direction. Rest, motion and direction. Rest के लिए सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें, striking a doormat with stick. जब भी हम स्टिक से उसको स्ट्राइक करते हैं, then the dust will fall down. Why? Because of inertia of rest की वजह से जो हमारा मैट है वो तो मोशन में आ जाएगा, बट जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे. सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे विल फॉल डाउन. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट मोशन, मोशन के लिए एग्जांपल है व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स सडनली. एकदम से रोड पे कुछ एनिमल आ गया, काऊ आ गई, तो ड्राइवर ने क्या किया? सडनली ब्रेक अप्लाई करी. तो जो पर्सन होता है बस के अंदर, he will fall in the forward direction. Why? Due to inertia of motion. क्योंकि जैसे ही बस ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाई तो जो बस थी वो रेस्ट पे आई. उसी तरीके से जो लोअर पोर्शन है दैट वाज इन कांटेक्ट विद द दिस पोर्शन, लोअर पोर्शन वेस्ट के नीचे वाला, दैट इज इन कांटेक्ट विद द सीट, सो वो भी रेस्ट पे आ गया. बट द अपर पोर्शन will try to remain in motion due to inertia of motion. That's why the person will fall in the forward direction, right? On the other side, if I talk about direction, seat belts are provided. सीट बेल्ट का क्या काम होता है? ये पर्सन इज सिटिंग इन द कार, तो वो टाई कर रखी है सीट बेल्ट, राइट. व्हाट विल हैपन? अगर उसने एकदम से टर्न लिया तो हम डोर की साइड लगते हैं, और अगर हमारे पास बेल्ट लगी हुई है तो हम कहीं भी नहीं गिरते, क्योंकि डायरेक्शन हमारी क्या है? कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है एकदम से, एंड ही टुक अ शार्प टर्न. जब शार्प टर्न लिया तो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुई, बट अपर पोर्शन विल ट्राई टू रिमेन स्ट्रेट, तो उसी वजह से हम इधर उधर गिरते हैं. दैट इज द रीजन फॉर द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं. ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड पीस रखिए, कार्डबोर्ड पीस के ऊपर एक 5 रुपीज कॉइन रखिए, राइट, एंड फ्लिक इट. व्हेन यू फ्लिक दिस कार्डबोर्ड, तो ये कॉइन है जो ग्लास के अंदर चला जाएगा. अगर आप 5 रुपीज कॉइन की बजाय 25 पैसे या 50 पैसे का कॉइन लोगे तो ये नहीं वर्क करेगा. क्यों? क्योंकि 50 पैसे का जो कॉइन है उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा कम है, राइट. तो इस वजह से क्या होगा? जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसमें नहीं हो पाएगा, उसके पास इतना इनर्शिया नहीं होगा क्योंकि मास कम. तो इनर्शिया ज्यादा तभी होगा जब मास, राइट. सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, राइट. तो इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, जैसे लेजीनेस होती है कि मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना, वो इनर्शिया ही है. साइंटिफिक टर्म में हम बोल सकते हैं कि दैट इज इनर्शिया. इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा. दिस इज इनर्शिया, राइट. देन आफ्टर दिस वी हैव very important laws of physics, Newton's laws of motion. There is Newton laws of motion. So Newton gave us 3 laws, very important. Newton's laws of motion, that are first law, second and third. We can discuss here one by one. First law, second law and third law.
तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि अ बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन until or unless an external force is not applied। कि अगर एक बुक है, बुक अगर टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल पे ही रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, राइट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो न्यूटन को जो ये आइडिया कहां से आया, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास गैलीलियो, वेरी फेमस। ही डिड द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक बॉल यूज करी, इस तरह के से यहां से रिलीज करी और दूसरी तरफ स्लांटिंग हाइट थी। बट ही ऑब्जर्व कि जो बॉल है वो रेस्ट पे आती थी फिर वापस आना शुरू होती थी जब तक उतनी हाइट जितनी से रिलीज किया उस हाइट को वो अचीव ना कर ले, राइट। सो देन अगेन ही व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, सेकंड केस में ये जो स्लांटिंग थी वो कम कर दी और लेंथ बढ़ा दी यहां से। देन व्हाट ही ऑब्जर्व, बॉल सेम हाइट से रिलीज करी, यू कैन सी ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इन दोनों के कंपैरिजन ये डिस्टेंस जो d2 है, दिस इज मोर, दैट वाज d1, दैट इज d2 इज ग्रेटर देन d1, राइट। तो बॉल उतना डिस्टेंस चाहे ज्यादा कवर करना पड़े उसको, इट डज नॉट मैटर, बट वो वहीं से वापस आना स्टार्ट करेगी जब तक वो उस हाइट को अचीव ना कर ले जहां से वो रिलीज की गई थी। तो सेम वे व्हेन ही देन ही थॉट कि अगर मैं इस स्लैंटिंग हाइट को बिल्कुल ग्राउंड पे ले आऊं और बॉल को रिलीज करूं तो बॉल विल नेवर कम टू रेस्ट। व्हाई? क्योंकि दूसरी तरफ तो हाइट है ही नहीं, वो अचीव कैसे करेगी। बट इट वाज नॉट द केस, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी वजह से अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस हो तो बॉल रेस्ट पे ही कभी नहीं आएगी, मोशन में ही रहेगी, राइट। बट फ्रिक्शन इज देयर, सो दिस इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज, कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगी तभी वो रेस्ट पे है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बॉडी मोशन में रहेगी। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं, a body tries to remain at rest or in motion until or unless an external force is not applied on it, right? So dear student, as it's all about the force, so this law defines force. Always remember, objective में आता है कि which law of motion define force, Newton's first law, and this law is also known as law of inertia, क्योंकि कुछ कुछ उसके साथ मैचिंग है इसकी, कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू mv माइनस u बाई t। What it says that rate of change of momentum is directly proportional to external force applied. So dear students, a simple example I will give you, like, well, suppose we are playing the catching a ball with our friend. Our friend is standing at a distance of 5 meters. Then we are throwing the ball. Suppose now the friend is at distance of 10 meters, then 20 meters, 30 meters. So will we apply the same force? No, obviously not. We will increase our force. Why? Because we know that if I want to make that ball to reach that person, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उस फोर्स से क्या आएगा? मोमेंटम। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम जनरेट होगा। तो यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड करना है उस फिजिकल क्वांटिटी को, चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म। दूसरी तरफ ये जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट मेजर्स फोर्स। याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। विच लॉ ऑफ मोशन मेजर फोर्स, डिफाइन फोर्स, दोनों सेपरेट। ओके, then comes Newton's third law of motion. Newton's third law of motion says to every action there is equal and opposite reaction. Suppose there are two bodies, one is A, one is B. A is applying the force, then B will also apply the force. तो हम इसको लिखते हैं FAB is equal to minus FBA. What does it mean? FAB means force on A due to B, force on B due to A. These forces will be equal in magnitude but opposite in direction. To every action there will be
an equal and opposite reaction. Very important. To every action, there will be an equal and opposite reaction. This is Newton's third law of motion. And one thing you have to remember, keep in mind, कि ये जो forces है कभी भी cancel नहीं होती. Why? Because these two forces are acting on the two different bodies, right? That's why they can never cancel each other. क्योंकि नेट फोर्स जीरो तब होती है जब बॉडी के एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं. हमने ये तो बोल दिया इक्वल एंड ऑपोजिट है, बट ये दोनों बॉडीज हैं वो डिफरेंट है, राइट? दे आर नॉट सेम, सो दैट इज व्हाई इट्स रिलेशन इज लाइक दैट, right? Now here we have used one physical quantity which I would like to tell you, that is momentum. Momentum एक्चुअल में क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं. P का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट? सपोज अ कार इज नॉट स्टार्टिंग, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे से धक्का लगाते हैं, देन इट गेट स्टार्टेड. तो वो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब हम की रोटेट करते हैं तो उसके अंदर उसको हीट मिलती है, हीट जनरेट होती है. वो जो हीट जनरेट होती है दैट हेल्प्स द कार टू स्टार्ट, इंजन टू स्टार्ट. तो अब जब कीज वर्क नहीं करती तो हम पीछे से उसको पुश करते हैं, तो जो ड्राइवर अंदर कार के बैठा है, व्हेन ही जस्ट ऑन द की, तो इट विल स्टार्ट. व्हाई? बिकॉज इट गेट्स द मोमेंटम. तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is known as momentum. Its unit is kilogram meter per second, right? Kilogram meter per second. अब मोमेंटम का एक और देख लीजिए, अगर एक ट्रक है और एक कार है छोटी सी, राइट? बोथ विल कोलाइड विद द वॉल, राइट? तो who will damage more the wall? The truck. Why? Because it is having more momentum. So momentum depends upon mass and velocity. More mass, more momentum, more velocity, more momentum. तो दोनों के ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंड, प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, राइट? द सेम थिंग विच वी हैव यूज्ड. तो इसी वजह से हम जो न्यूटन सेकंड लॉ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 minus P1 over P. So dear student, there are three mathematical form of Newton's second law of motion which you have to remember, which you have to keep in mind. These three we can use according to the given physical quantity. कि जो quantity हमें given है हम उस हिसाब से choose करते हैं कि which formula we will apply, right? So thank you so much for watching this video. We'll be meeting you soon with the next video for the rest of the topics. Thank you so much.